Okay, so I'm just again sharing. Just wait. Okay, so we are having two data and on two different memory locations here, and we suppose want to add these two data. तो उन दोनों को हमने ऐड किया, एक हमारे पास एक्यूमुलेटर में है, एक टेम्परेरी रजिस्टर में है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर में जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर उनको हमने ऐड किया सपोज, और ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला उसको हम लोगों ने अगेन एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लिया, ठीक है। नाउ तो ये आपको डाउनलोड करना होगा, इसको आप एक बार कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। There are some files here over here. So how can you get the link? I will share you the link. Hello. Yes, sir. I will share you the link. Just आप लोग इस लिंक को जब एक्सेस करेंगे देखिए इस तरह से कुछ पेज आएगा, ठीक है। और इसको आप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का ये सिमुलेटर है इसमें जावा भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डोंट हैव जावा, सो दोनों चीजें एक साथ आपकी डाउनलोड होंगी, then you will get the simulator version 2. Clear? Okay, so we have some simulator codes and results. I'm just showing you. These are the simulator codes. Clear? ये आपके simulator codes हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक। This is the simulator code and which we have applied on this editor page. Clear? And accordingly we are getting the result on the simulator side. Clear? This is the editor page and this is the simulator page. And this is another code you can see for hexadecimal addition, where the information is stored in the HL pair register and DE pair register. ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास वही सेम ऑपरेशन है. First one is for 8-bit of data and second one is goes for 16-bit of data, or with carry and without carry, both are there. These two programs are there. Clear? So इसके बाद हम लोग there is some post tests, so you need not to connect with this right now. Post test में जाने की जरूरत नहीं है. And these are some references. Clear? Here you can get the video lecture regarding to this. If you want to get the video lecture, then you can click on this. Clear? I think you all are you all know about what that is the basics of this. You all can get the video lecture from related to 805, 8085 and 8051 microcontroller as well. ये देखिए सारे आपको video lecture यहाँ पे मिल जाएंगे. That is NPTEL based. Clear? So if you want to go through the basics of this, you can go here. उसके बाद आपको देखिए इसमें दो चीजें और ध्यान देनी है. जैसे आपको जो एडिशन करना है नंबर्स का, I think you all are aware with the addition of two hexadecimal numbers. सभी को एडिशन करना आता है हेक्साडेसिमल नंबर्स का. All of you are aware with the addition of hexadecimal numbers, या नहीं आता? ऐड करना आता है या नहीं आता है? लो कोई बताएगा? Farah Khanam is there. Farah is there.
Yes, sir. Okay. But I am asking that do you know about the hexadecimal digits addition? Addition of hexadecimal numbers or not? बताइए, मालूम है या नहीं मालूम है? Okay, so ये आपको दिख रहा है? This is a page which I have shown to you all. So Yes, sir. दिख रहा है. okay. So you can see here the how you can perform the addition of two numbers. Clear? So you can see the first one is having no carry and the another is having carry. Clear? So 83 is the hexadecimal number addition with the 39 hexadecimal number. Clear? So if you add 83 and 39, you will get the result B and C. Clear? इसका मतलब क्या है कि up to 15 15 तक आप अगर देखेंगे तो 15 तक अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब क्या है, up to 15 we are getting we are in the limit of the hexadecimal addition, but when we cross the 15th number, तो 15 को क्रॉस करेंगे ऐड करने के बाद अगर कोई नंबर 15 को क्रॉस कर रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा. वी नीड टू डिवाइड इट बाय 16. क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखें. तो फिलहाल हम जैसे 9 एंड 3 को ऐड कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है. 12 इज अंडर द 15. तो ए को 10 लिखते हैं, 11 को 12 लिखते हैं, बी को 13 लिखते हैं. इस तरह से हम लोगों ने 9 3 12 आ गया तो 12 को सी लिख दिया. ठीक है? ऐसे ही 8 and 3 is what? 11. 11 को क्या लिखेंगे? B लिखेंगे. A is 10 and B is 11. तो the answer is BC. That is another hexadecimal number with no carry. Carry कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई carry नहीं है यहाँ पे. So carry is 0. Clear? तो no carry is there. So इसको अगर हमें लिखना है तो हेक्साडेसिमल में, तो इट इज ऑफ 16 बिट. 16 बिट कैसे बनाएंगे इसको? वी नीड टू पुट सम जीरो, क्योंकि यहाँ कैरी तो है नहीं तो इसके पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे 4 बिट्स के. तो टोटल आपके 16 बिट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो टोटल इंफॉर्मेशन विल बी व्हाट? 00 BCH. क्लियर? दिस इज 16 बिट नंबर. क्लियर? ऐसे ही हमें मान लीजिए दूसरा वाला एग्जांपल देखिए जिसमें हमारा है A4H एंड 63H. इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 4 and 3 is 7 और 6 और A ऐड करेंगे तो आएगा A is 10, 6 is 6, तो 10 plus 6 is 16. 16 is what? Greater than 15. तो 16 चूंकि 15 से बड़ा है तो मैंने अभी आपको बताया था कि उसको हेक्साडेसिमल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें 15 हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 16 आ रहा है, 16 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 16 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 16 1 जा 16. वी आर कैरी हमारा जीरो, हाँ जो है 16 1 जा 16, तो रिमाइंडर 0 आ गया. तो 1 और 0 मिलके आपका क्या है? सो वी कैन राइट इट एज 10. इसको मैं 10 लिख सकता हूँ. क्लियर? तो 10 लिख दिया, आप देख सकते हैं. इट इज राइट एज 10. ठीक है, यहाँ पे इसको 10 लिख दिया. जो भी ऐड करने पे है तो इसमें 0 तो आपका इसके साथ हो गया, 1 आपका कैरी हो गया. तो 1 बनाने के लिए कंप्लीट नंबर को इसके आगे 0 लगा दिया तो 0 1 0 7. तो कंप्लीटली आपका 16. अब आप देखिए इसमें कमांड लिख CH. क्लियर? एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, पास 1 है, एक नंबर 2 है. जो तो एक मेमोरी लोकेशन, तो हमने क्या किया, मेमोरी लोकेशन की तरफ हमने एड्रेस पे रखा दूसरा वाला नंबर, सेकंड की इंफॉर्मेशन 2050, पहला वाला नंबर हमने ऐड किया, दैट इज 83H. क्लियर? उसके बाद जो फिर सेकंड वाले को 39 है अगर, तो वो भी पहले एक्यूमुलेट और आप उस पर फिर से एक नंबर ऐड करेंगे तो दोनों नंबर ओवरलैप्ड हो जाएंगे. तो इस कंडीशन को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उस जो एक्यूमुलेटर का पहले वाला जो डेटा है उसको हम मूव करा देते हैं वहां से दूसरे लोकेशन पे. तो इसलिए हमने मूव कमांड यूज किया, MOV मूव B, A मींस एक्यूमुलेटर के डेटा को B में मूव करा दिया. B इज द टेम्परेरी रजिस्टर,
अब एक्यूमुलेटर खाली हो गया। अब जब एक्यूमुलेटर खाली हो गया तो हमने जो 2051 वाला नंबर है उसको एक्यूमुलेटर पे स्टोर कर दिया। तो लोड एक्यूमुलेटर विद 2051 एड्रेस डेटा, ठीक है। इसके बाद ऐड बी कर दिया। ऐड बी में क्या हुआ, बी को ए के साथ ऐड किया। ऐड बी का मतलब बी मींस बी इज टेम्परेरी डेटा, इट विल बी ऐड विद द एक्यूमुलेटर डेटा। तो बी प्लस ए हुआ और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अगर कोई कैरी नहीं आ रहा है तो व्हेन द कैरी इज नॉट देयर जंप, तो हमको ये जेएनसी कमांड नेक्स्ट टू कैरी, तो ये दोनों हैपन, ठीक है। प्रोग्रामिंग समझ में आ रहा है। ये लास्ट में हाल्ट ऑपरेशन, ठीक है, तो मतलब रोकने के लिए काम हाल्ट है, उसको हमने थर्ड मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा लिया, देन वी क्लोज, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इज इट क्लियर? की प्रोग्राम, and I will also share you the Google Classroom link, so kindly add yourself accordingly as possible, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर, ठीक है फिर।